Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Libra Ascendant and the predictions for the month of October 2023. So after a long time, Libra Ascendant people are going to see an all-round great month. Sun is going to transition through the first house on 18th of October, and time frame from 18th of October to 2nd of November, there is going to be an exchange of Sun and Venus. So Venus will be in the sign of Leo, which is owned by Sun, and Sun will be in the sign of Libra, which is owned by Venus. So this exchange of first and the 11th house lord is extremely auspicious. You will be able to make big changes in your investments in this month. This is also a great time to enjoy with your social circle, your close friends, and spend time with your elder siblings. And you should also take into account any advice that your elder siblings provides to you. This will also be a time when you will be able to achieve something for which you have been working for a very long time, and it is a time of gains for you due to this exchange of the first and the 11th house lord. People who are ambitious and workaholic will also see a recognition at their workplace, and people who are related to politics will also see a very favorable time between 18th of October and 2nd of November. Mars is your second house lord and is going to be located in the first house for the whole month. This transit is a wealth creating combination. The time frame from 28th to 30th of October is specially auspicious as far as the cash flows are concerned. Jupiter is the owner of 6th house for you, and it rules over your services as well as the houses of disease. It is combining with Rahu in the 7th house. So the good part that is going to happen for all the ascendants is that Rahu is going to go away from Jupiter on 30th of October. For your ascendant, Rahu will be moving into the 6th house, and Jupiter will be left alone here, and all the malefic impact of Rahu will get removed by the end of October. So Jupiter here is going to create an opportunity for you to get hitched during this transit, and favorable time for people who want to get married in the month of October is between 2nd and 5th of October. Jupiter is also the lord of service for you, so people who are in jobs will also see a very favorable time at their workplace, especially in the middle of the month. So time from 14th to 17th of October is very favorable as far as progress in the work is concerned, and this is a great time to rise and shine at your workplace. As I said earlier, Rahu will move in your 6th house, and it is a very benefic placement of Rahu for Libra ascendant people. Starting from 1st of November to the next 1.5 years, Rahu here is going to be stationed in the sign of Pisces. Pisces is the sign of exaltation for Venus, that happens to be your ascendant lord, and Rahu and Venus are also very great friends. So this is a very powerful position for Rahu to be in. Not only it is going to provide you victory over your competition, it is also going to bring you a lot of money. And Rahu's position here also tries to get rid of all the diseases that you may have. So even if you get some disease, it does not stay for a very long time. However, if Rahu is badly placed in your horoscope, then it may also give you a very weird kind of a disease, something which people have not imagined, but it does not apply for everyone. Saturn is currently transitioning through your 5th house and is a highly benefic planet for you. Saturn also rules your 4th house of domestic happiness as well as 5th house of education and speculation, and is a highly benefic planet. So if you are a student, then the best time to appear for any kind of a competitive exams is between 10th to 13th of October. And if you are involved in the speculation business, then the best time frame to earn money from the market is from 28th to 30th of October. This is a great time to book profit on your existing investments and move out of the market. So overall a pretty good month as far as the cash flows or profits are concerned. Now you also need to be cautious during certain dates in the month. So the time frame where you need to be very cautious is 6th to 9th of October, where you need to watch out for your health, and also 21st to 23rd of October, where you need to avoid taking any key decisions. So if you look overall, this is a very fine month with progress in the different domains of life for the Libra ascendant people. So if you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुला लग्न वालों के लिए
अक्टूबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, तुला लग्न के लोगों के लिए काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा महीना आएगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में जिस तरह के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, खास करके 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में काफ़ी सारे ग्रह लग्न स्थान में उपस्थित होंगे। मंगल और केतु यहाँ पहले से बैठे हुए हैं और सूर्य और बुध उनको ज्वाइन कर लेंगे 18 अक्टूबर के बाद। और 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में लग्नेश और लाभेश का आपस में स्थान परिवर्तन होगा, यानी कि आपके लग्नेश शुक्र 11वें भाव में बैठे होंगे, और जो कि लाभ का स्थान है, और 11वें भाव का मालिक सूर्य आपके लग्न स्थान में बैठा होगा। तो जितने भी लोगों का बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है और फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, उनको इस समय में अपने सोशल नेटवर्क के साथ मौज मजा मस्ती करने का मौका मिलेगा। आपको अपने बड़े भाई बहन के साथ भी इस टाइम में समय बिताने का मौका मिलेगा, और अगर वो आपको कोई एडवाइस देते हैं तो आप उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश कीजिए। 11वें भाव से आप व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट्स में होने वाले लाभ को भी देखते हैं, तो इस टाइम में अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी लाभ आपको आगे फ्यूचर में मिलेगा। जितने भी लोग वर्कोहलिक किस्म के हैं, जिनको कार्य क्षेत्र पे लंबे घंटे बिताने में मज़ा आता है और उनके लिए प्रोफेशनल तरक्की ही जीवन का मकसद है, उनको भी इस महीने में एक रिकग्निशन मिलेगा अपने कार्यस्थल पर। और 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय ऐसा है जब जितने भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी व्यक्ति पदों के लिए कोशिश करते रहते हैं राजनीति में, क्योंकि वहाँ पर पावर और कुर्सी ही सब कुछ है, तो उनको भी इस समय में एक अचानक बड़ा अपलिफ्ट मिल सकता है। मतलब अगर आप खुद ही राजनेता हैं तो, लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत लोग पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। मंगल आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और ये प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो चाहे द्वितीयेश प्रथम भाव में बैठे या प्रथमेश द्वितीय भाव में बैठे, ये एक फाइनेंशियल दृष्टि से अच्छा योग कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपके लिए धन कमाने के मौके बनाएगा अक्टूबर के महीने में। और 28 से 30 अक्टूबर तक का समय खास करके बहुत अच्छा है अगर आप फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो। इस महीने में वैसे भी पैसे की आवक अच्छी रहेगी, लेकिन इन 3 दिनों में पैसे की आवक के हिसाब से सबसे अच्छा समय है आपके लग्न के लिए। गुरु आपके लिए तृतीय और छठवें भाव के स्वामी हैं और ये सप्तम भाव से भ्रमण करेंगे। 30 अक्टूबर को गुरु का पीछा राहु छोड़ देगा। राहु अभी तक बैठ के गुरु के कारकत्व को खराब करने का काम कर रहा था अप्रैल 2023 से लेके अक्टूबर के अंत तक। तो ये राहु यहाँ से निकल के छठवें भाव में चला जाएगा और गुरु यहाँ पर अकेले केंद्र स्थान में बैठ के आपको फिर भी थोड़ा बेहतर परिणाम देना शुरू कर देंगे। गुरु का सप्तम भाव से भ्रमण, यानी जितने भी लोग सिंगल हैं उनके लिए शादी करने का मौका। तो अक्टूबर के महीने में 2 से 5 अक्टूबर का समय सबसे अच्छा है शादी करने की दृष्टि से। आपके लग्न के लिए गुरु सर्विस का भी कारक बनता है, क्योंकि वो छठवें भाव का मालिक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए महीने में मिडिल का समय सबसे अच्छा है, यानी 14 से 17 अक्टूबर का समय ऐसा है जब आप अपने कार्यस्थल पर अच्छी तरक्की कर सकते हैं, और हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए इस समय में। जैसा मैंने पहले कहा था, राहु छठवें भाव में चला जाएगा। राहु का 3, 6 और 11 इन स्थानों में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो। और छठवें भाव से आप सामने के अपने दुश्मनों को देखते हैं, जो भी दुश्मन आपके नज़र में है, यानी उजागर हुए दुश्मन। 12वें से आप छुपे हुए दुश्मन देखते हैं। तो यहाँ पे ये राहु बैठ के आपके प्रतिद्वंदियों को परास्त करने का काम करेगा। तो इस समय में ये 1.5 साल का ट्रांजिट आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा अपने शत्रुओं को हराने में, पैसा कमाने की दृष्टि से। अगर आप कोई कोर्ट केस या इस तरह के वाद विवाद में उलझे हैं तो उसमें भी राहु आपको अच्छे रिजल्ट ला के देगा। राहु यहाँ मीन राशि में बैठेगा और मीन राशि में आपका लग्नेश शुक्र उच्च राशि का होता है। तो और लग्नेश का और राहु का, यानी शुक्र और राहु का सबसे अच्छी मित्रता होती है ग्रहों में। तो ये राहु का ट्रांजिट हर तरह से आपके लिए 1 नवंबर के बाद अच्छे रिजल्ट लाना शुरू करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पर बैठ के। आपके लग्न के लिए शनि योग कारक हैं। शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके लिए अभी पंचम भाव से ही भ्रमण कर रहे हैं। तो अगर आप छात्र हैं तो अक्टूबर के महीने में 10 से 13 अक्टूबर का समय सबसे अच्छा है किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने की दृष्टि से। और अगर आप स्पेक्यूलेशन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए पैसा कमाने का जो डेट्स हैं वो 28 से 30 अक्टूबर हैं। और इस समय में आप कोई भी जो पहले के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनमें भी आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। ये आपको अच्छे रिटर्न्स ला के देने के लिए बहुत ही अच्छे दिन हैं। इसके अलावा कुछ दिनों में आपको सावधान रहना है। 6 से 9 अक्टूबर का समय ऐसा है जब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और 21 से 23 अक्टूबर का समय ऐसा है जब आपको कोई भी की डिसीजन नहीं लेना है। इस समय में आप जो भी स्टेटस क्वो है उसको बना के रखने में ही
भलाई है। तो आप कुल मिला के देखिए तो बहुत अच्छा समय है ये, खास करके जो लग्नेश और एकादशेश का स्थान परिवर्तन हो रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा योग कहलाता है। और जो भी आपके मन की इच्छा है, जो भी मनोकामना आप काफ़ी टाइम से पाले हुए हैं और उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो इस समय में ज़रूर पूरी होगी। तो कुल मिला के ये आपके लग्न के लिए बहुत ही अच्छा महीना होगा अक्टूबर का। तो ये समरी है आपकी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।